Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 12. The chapter which we are related with is depreciation. एक बहुत important matter आपसे discuss करना है. आपके ये paper का question है और normally paper में इसी तरह के question आते हैं. We have already done this sort of question where there were two assets. One asset was sold for profit or loss and second asset we have purchased again. So there was two asset, old asset and new asset. अच्छा प्रॉफिट या लॉस में यहाँ देखिए आंसर में क्लियरली मेंशन हो गया है तो हमें पहले से पता है कि वी विल बी फेसिंग लॉस. मेन मैटर आपने क्या समझा? देयर आर टू एसेट ओल्ड एंड न्यू. ओल्ड यू विल सेल एंड यू विल बी फेसिंग लॉस और प्रॉफिट एंड यू विल बी बाइंग अ न्यू एसेट एज वेल. ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था. दूसरी बात आप चेक करें कि आप मशीन के साथ रिलेटेड हैं तो इट्स मशीनरी अकाउंट. फिर आप 10% स्ट्रेट लाइन मेथड भी लिखा हुआ है तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये सब हम चलाएंगे. So we are ready to start our question. Let's begin. On 1st July 19 purchase machinery. तो चूंकि 1st जुलाई को आपने मशीन परचेज किया, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग. सो जुलाई 19 को आप परचेज कर रहे हैं एसेट. सो व्हाट यू विल डू, यहाँ पर टू कैश and how much value of asset you are buying. Look over here, 120,000, and then you will see if there are any installation erection charges. Over here there are no installation charges, so directly you will put your amount. The amount mentioned over here is 1,20,000. put कर दें. then there would be December 19. आपने depreciation calculate करनी है. so over here by depreciation or method of depreciation we have already discussed, 10% straight line or original cost we will always be taking actual value which is 120,000. then you will multiply 10 divided by 100 for 10%. now very important, you have started this for 1st July. ये date underline कर लें, 1st July. so you will be counting months from July because it's 1st July would be included. ये बताएं जरा कि जुलाई से पहले वाले मंथ्स गिनने हैं, जुलाई के बाद वाले मंथ्स. So I'm sure some people will give right answer since we have purchased it on 1st July. तो पिछले मंथ से तो हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं होगा. So we will start our calculation on 1st July. So July, August, September, October, November, December. So 6 months you will use to calculate your depreciation. एक दफा फिर देखें, 1,20,000 was value of asset, then you have taken 10% and then 6 months depreciation you will be calculating. So first depreciation arrived and secondly we will take sum of both sides to calculate balances. So debit side balance is calculated. Now you will be calculating your credit side total, वो भी हो गया. Smaller side you will use December 19 would be the date and here by balance you will calculate and this balance would be carried down. And how you will calculate? Take larger sum 120,000, subtract smaller sum which was 6,000, larger से smaller minus करके आपके पास आ गया जी बैलेंस. अब नेक्स्ट स्टेप इज टू ब्रॉड दिस बैलेंस डाउनवर्ड. अगला साल याद रखिएगा उसने जनवरी से ही स्टार्ट होना है. सो दैट वुड बी जनवरी 20. आप बैलेंस राइट डाउन करें बट दिस बैलेंस वुड बी ब्रॉट डाउन. और ये भी आपको पता है कि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस वुड बी ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर. नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट आवर डेप्रिसिएशन ईयर December 20 बाय डेप्रिसिएशन. अब मैं आपसे कहता हूं कि यू हैव कैलकुलेटेड दिस प्रीवियस डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स. सो फॉर हाउ मेनी मंथ्स यू विल कैलकुलेट सेकेंड डेप्रिसिएशन? मुझे ये भी पता है कुछ लोग सही आंसर देंगे बिकॉज सेकेंड ईयर इज स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी. सो वी विल टेक फुल मंथ्स, दैट मीन्स 12 मंथ्स. लेकिन वी आर फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड. अगेन जो ओरिजिनल प्राइस है दैट वुड बी टेकन 1,20,000. 10% is rate of depreciation. months गिनने की जरूरत नहीं है, 12 months. so this way you will be calculating your depreciation. दोबारा सुने, 1,20,000 एसेट की वैल्यू थी और आपने 10% लिया. इस तरह से डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होके आ गई. नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट बैलेंस, जिसके लिए आप दोनों साइड का टोटल करेंगे, छोटी साइड चूज करेंगे और यहाँ December 20 में
आप बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, बट दिस बैलेंस वुड बी कंसिडर्ड एज कैरीड डाउन। कैसे? यू विल टेक लार्जर सम एंड देन यू विल सब्सट्रैक्ट स्मॉलर सम, जो कि 12,000 था। इस तरह से हमारे दूसरे साल का भी बैलेंस आ गया। अब आप जा रहे हैं थर्ड ईयर में, जनवरी 21 में। फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रॉट डाउन योर बैलेंस, दिस वुड बी कॉल्ड बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, अब जो मजे की चीज है वो अब स्टार्ट होने लगी है। देयर इज अ चेंज इन एसेट। जो शुरू में मैं कह रहा था ना, देयर विल बी टू एसेट, ओल्ड एसेट वुड बी सोल्ड एंड यू विल बाय न्यू एसेट एट द सेम टाइम। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी अंडरलाइन कर लें। ऑन 31st October 21 मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 48, और हम किस साल में हैं? 21 में। अब ये एसेट बेच दिया तो सबसे पहला स्टेप है, वी विल बी कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। अब कब तक की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है? डेट इज मेंशन 31st October। तो क्या आप 31st October के बाद में जाएंगे? आप में से कुछ लोग ठीक आंसर देंगे कि 31st October इज द डेट व्हेन वी हैव सोल्ड आवर एसेट। उसके बाद तो एसेट ही हमारे पास नहीं था, सो वी विल नॉट बी कैलकुलेटिंग एनीथिंग आफ्टर 31st October। सो हियर 31st October 21, and here you will be calculating your depreciation। रेड कलर हमने, याद है ना, ओल्ड के लिए रखा हुआ है। दो बातें गौर से सुननी है। डेप्रिसिएशन व्हेनेवर वुड बी कैलकुलेटेड अंडर फिक्स्ड बेस, यू विल ऑलवेज बी टेकिंग ओरिजिनल अमाउंट। 1,20,000 10% रेट है। अब मुझे बताएं कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी? वुड वी बी कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन months after 31st October or before 31st October? So the correct answer is, when you have sold this asset on 31st October, depreciation after these months would not be considered। जब बेच ही दिया एसेट के 31 अक्टूबर को, तो फिर आपने तो एसेट देखना ही नहीं है। इसका मतलब है कि आप 31 अक्टूबर से पहले और जनवरी के बाद वाले मंथ्स गिनेंगे। तो गिनना शुरू करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। So these are 10 months of depreciation you will be calculating। दोबारा सुने, 120,000 was value of asset, then you have taken 10%, और तब आपने कहा कि सिर्फ 12 महीनों की डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट हो। ले जी, उसके बाद और इंटरेस्टिंग चीज ये आई है कि ऑन 31st October यू हैव सोल्ड द एसेट। जब बेचेंगे तो आपको याद है ना हमने क्या एंट्री की है? बेचेंगे तो कैश आएगा, मशीन जाएगी, तो कैश टू मशीन, मशीन क्रेडिट हो रही है, सो हियर कैश विल कम आउट। हाउ मच कैश यू आर रिसीविंग? ध्यान से देखें, ऑन 31st October मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹48,000, तो 48,000 का उसको बेच दिया। अब आपने फैसला करना है कि उस एसेट का लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। ये पुराने क्वेश्चन का हमने किया हुआ था। इसमें सबसे पहले तो आपको वैल्यू देखनी है। एसेट वैल्यू एट दिस टाइम वाज 102,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन वाज कैलकुलेटेड फॉर 10,000। अब इसकी वैल्यू उस टाइम कितनी थी जब बेचा था? डेप्रिसिएशन लेस करके इट वाज 92,000, और बेचा कितने का? 48,000 का। अब आप में से कोई मुझे आंसर दे, द वैल्यू ऑफ एसेट वाज 92, सोल्ड फॉर 48,000। तो खुश या परेशान? So most of the people will give correct answer as it's a loss, because value was 92, sold for just 48. Value was more than that of cash price, so you are receiving less cash, it's a loss। कितना loss हुआ? 48 का बेचा while the value of asset was 92, तो 44,000 का नुकसान हुआ। और एंट्री क्या करते हैं? लॉस टू मशीन। तो क्रेडिट साइड पर आकर आप शो करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ये एंट्री पहले ही हमने समझी हुई है। कितना लॉस हुआ? 44,000 का। आंसर शायद मौजूद था। ओके, यस, लॉस ऑफ मशीन 44,000 कंप्लीट हो। अच्छा, अब आप देखें कैसे हमने क्या काम किया। सिर्फ पुराने एसेट को कंसिडर किया और नए एसेट की बारी नहीं आने दी। अच्छा, अब दूसरी बात, इन सब की भी डेट्स हम रेड कर देते हैं ताकि ये आपस में मिक्स ही ना हो। तो एसेट की वैल्यू, चूंकि ओल्ड एसेट था मैंने इसीलिए इन सबको रेड कर दिया। इसका हिसाब ही बिल्कुल डिफरेंट हम करेंगे। एक ये जनवरी 21 था, दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू ओल्ड एसेट।
अब आपने क्या समझना है, जो रेड लाइन है वो ओल्ड एसेट की लाइन। अब आप काम करें नया, देखिए वो क्या कह रहा है, ऑन सेम डेट जो 31 अक्टूबर चल रही है, परचेज न्यू मशीनरी फॉर 40,000। सेम डेट का क्या मतलब है, आपने 31 अक्टूबर को बेचा तो वही 31 अक्टूबर 21 को नया एसेट आ गया, उसके लिए टू कैश करेंगे। कितने का एसेट खरीदा, दैट वाज 40,000। और चूंकि कोई एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे है नहीं, तो आप सिंपली 40,000 ही लिखेंगे। उसके बाद डार्क लाइन के अंदर डिस्कस कर रहा हूं, दिसंबर 21 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एंड वी आर गोइंग टू पुट इट ब्लैक। चलें यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं, मगर थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। दिसंबर 21 को इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी जो नया एसेट है। और कैसे चार्ज करेंगे आप डेप्रिसिएशन, चूंकि ओरिजिनल वैल्यू मेथड है, 40,000 वाज वैल्यू ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 10%। अब आगे भी आपको चलना है, देखें ये दिसंबर है एंड दिस वाज 31 अक्टूबर। अब बताएं अक्टूबर से पहले मंथ या बाद के मंथ। सो करेक्ट आंसर इज बाद वाले। वाई, बिकॉज यू हैव परचेज दिस एसेट ऑन 31 अक्टूबर, तो डेप्रिसिएशन उसके बाद लगना स्टार्ट होगी, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। अक्टूबर का मंथ काउंट करेंगे, नो, वाई, बिकॉज इट इज 31 अक्टूबर, तो वो तो महीना खत्म हो गया। फिर अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, सो जस्ट 2 months डेप्रिसिएशन वुड बी कैलकुलेटेड। अब यहां पर मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, 40,000 वाज वैल्यू ऑफ एसेट, 10% was rate of depreciation and multiply by 2/12, तो डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट हो गया हमारा। चूंकि ये डेसिमल सिस्टम चल रहा है, एक्सेल चल रहा है, तो मुझे तो आसानी है, मैं तो डेसिमल लिख लूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। हाथ में लिखते वक्त थोड़ा आपको मसला होगा हाथ से लिखने में, तो आपने घबराना नहीं है। अब इसका बैलेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लें जी, नया एसेट था 40,000, वैल्यू ऑफ न्यू एसेट वाज 40,000 और वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन वाज 66, माइनस कर दें। अब अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सम करके चेक कर लेना है, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। सो क्रेडिट साइड टोटल डन, डेबिट साइड टोटल डन, आपने देखा दोनों साइड का इक्वल हो गया। वापस चल के देखते हैं कब तक काम करना है, 2019 टू 22, एक साल बकाया रह गया। अब आप देखें जो रेड वाला एसेट था ना वो तो बिक गया, इट मीन्स वी डू नॉट हैव एनी बैलेंस फॉर न्यू एसेट। तो इधर क्या करेंगे, जनवरी 22 से स्टार्ट लेंगे, टू बैलेंस आप करेंगे और ये टू बैलेंस सिर्फ पुराना एसेट आपके पास पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू टेक ओवर करते हैं। दिसंबर 22 को आपने डेप्रिसिएशन लगानी है और इस डेप्रिसिएशन को वी आर टर्निंग ब्लैक। वाई, बिकॉज इट्स जस्ट द न्यू एसेट, ओल्ड एसेट की बारी नहीं आएगी। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है, फॉर दैट पर्पस ये भी इधर से ले लेते हैं क्योंकि वो रेड हो रहा है, हमने इसको सिर्फ ब्लैक रहने देना। ले जी, अब इस जगह पर आप पहले देखें ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट यू वांट टू टेक, तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ न्यू एसेट वाज 40,000। बस यहां से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, आप गलती से ये वाला बैलेंस टेक ओवर कर लेंगे। तो चूंकि वी आर फॉलोइंग फिक्स्ड बेस मेथड, तो आपने 40,000 टेक ओवर करना है और फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर टोटल मंथ्स है, यहाँ मंथ्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है। 40,000 वाज ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट एंड देन यू हैव टेकन 40%, तो 4,000 आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई। वी नीड टू चेंज इट्स कलर, वैसे तो ऊपर से भी कॉपी किया जा सकता था लेकिन टाइम उतना ही लग रहा था, तो वी हैव चेंज्ड इट। लें जी, डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होके आ गई। अब इसके बाद आपने बैलेंस कैलकुलेट करना है, उसके लिए यू विल टेक सम ऑफ बोथ साइड्स। क्रेडिट साइड का सम हो गया, अब आपने डेबिट साइड का सम कर लेना है और उसके बाद स्मॉलर साइड विल बी चूजन to calculate your balance. This balance would be brought down, and how you will calculate, larger sum you will take and subtract smaller sum which is 4,000, और इस तरह से बैलेंस आ गया 35,353,353। और चूंकि हम डेसिमल यूज कर रहे हैं उसने राउंड ऑफ करके आखिरी वर्ड को 4 बनाया हुआ है, तो 35,333। ले जी, आपका आंसर आ गया
जैसे मैंने एंजॉय किया क्वेश्चन को, आई एम वेरी श्योर यू पीपल हैव एंजॉयड एज वेल। मसला सिर्फ ये है, स्किप नहीं करते, एक एक, चाहे आपको आता भी है तो आप हर स्टेप को ऑब्जर्व करें, अच्छी तरह से समझें। अगर कोई मसला हो मेरे से डिस्कस भी कर लिया करें। Alright guys, this was our lecture and I'm sure that you people have understood everything. If there is anything you want to ask, you are very open to share your problem through messages, text, or you can directly contact. I will humbly be trying my best to answer your question quickly. So thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.